Hello and welcome to today's class. Today we have to take magnetism and matter. It is so far we have discussed moving charges and magnetism. That means in the magnetic field, if what will be the effect on a moving charge, or what will be the effect of a current carrying conductor placed in that field. That means we can very easily say that whenever electric current passes through a wire, then around that wire there is always some magnetic field that is felt. In the same way, we can just say that if a current carrying conductor itself is placed in already existing magnetic field, then it will experience a force. And that is the thing which we had to discuss in the we had discussed in the previous lecture. That is in the lectures of moving charges and magnetism. Now today we will discuss a new chapter that we call as magnetism and matter. It's a very small chapter because majority of the thing has already been removed, the category or classification of magnetic fields, magnetism, that is diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic. Although in second lecture I will give some brief account of their comparative study, because that will be useful for your competition. But that is definitely not given in the CBSE's present this year's syllabus. Please keep it in mind. That is very important thing. What are there in the syllabus? That is, we have to know the components of elements of Earth's magnetic field. That is in the syllabus. We must know what is the magnetic dipole moment of a revolving electron. That we have also discussed in lecture 2 of previous chapter, that is moving charges and magnetic field, that we have and magnetism, that we have discussed in lecture 2. The revolution of electron can produce magnetic dipole moment. That is also an important part. That is also in the syllabus. And in the second lecture of the present chapter, we will definitely discuss the how a solenoid can behave like a bar magnet, and vice versa. That is why bar magnet can also behave like a solenoid. That's all. But presently we will discuss the chapter that is magnetism and matter. This is our first lecture of this chapter. When we call magnetic effect, magnetism. The magnetism से क्या मतलब हम लोग generally लेते हैं कि what we generally think of the magnetism term, when anything which can attract iron, anything which can attract iron, that could be a magnet. Okay, and suppose we are having this as the magnet, this as the magnet, this as the magnet, this as the magnet. Okay, this dumbbell type of nature, very light magnet. This is also a magnet, also a magnet, and this is your horseshoe magnet. We can see that there is always uh, one kind of repulsion, one kind of repulsion that is being taken place. Okay, and here we can see that they are both are not attracted by this, but if this side is attracted, then this side has repulsion. This is not attractive, but rather this is repulsion. I am just forcing it to come closer, but it is, we are getting some force. In the same way, we can see that it is being attracted here. It is being attracted, but when we apply the same portion here, it is not attracted, but it is repelled. But this one is attracted. तो ये पोर्शन अट्रैक्ट हो जाता है पूरे पोर्शन में, but this portion is not being attracted. Similarly, if we take this one, then this portion is not attracted, but this portion is attracted. तो अब इसके मतलब क्या कि इसके दो पोल है, एक साइड में नॉर्थ, एक साइड में साउथ. इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? What we generally take, we take common this compass box. We can just see that if it is at one side, then this should be, you can see it comes from this side and goes to this side. That means magnetic lines of force खींचेंगे तो यहाँ से जाएगा, ये जाएगा पूरा पूरा होकर, जब यहाँ पर देखेंगे तो like this. Okay, although it is a vertical one, so if we place horizontally like this,
we can see red is attracting towards left, red is attracting towards red, the towards left, and black is attracted towards this one, it's towards right. राइट साइड में ब्लैक वाला जाता है और रेड साइड में लेफ्ट साइड में रेड वाला जाता है। देखिए यहाँ पर रेड वाला है और आप देखिए घूम रहा, इट इज रोटेटिंग। व्हेन वी कम टू दिस साइड देन जस्ट रिवर्स इज द केस। तो एक साइड में नॉर्थ होगा और एक साइड में साउथ। एक साइड में आप देख सकते हैं ये है, ये आपको दिख रहा है। आप देखिए दूसरी साइड में ये। तो ये जो कॉम्पास बॉक्स है इसमें रेड एंड हमेशा नॉर्थ दिखाता है। तो देखिए, तो ये जो जहाँ पर अट्रैक्ट करता है मैग्नेट में वो साउथ पॉइंट होता है, ये साउथ पॉइंट हो गया। और जहाँ से स्टार्ट होता है ये होता है आपका नॉर्थ पॉइंट। तो दिस इज द जनरल आइडिया ऑफ द मैग्नेट्स। जो हमने मैग्नेट्स के बात किया तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो व्हाट इज मैग्नेटिज्म? इफ एनीवन आस्क्स यू, it is just a natural property, it is just a natural property by which, if anyone asks you what is magnetism, magnetism, it is a natural of a matter by which it can attract iron object, iron object or anything which is made up of iron, okay, or steel, उन लोग को ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। And when suspended freely, when suspended freely, it always stays in north south डायरेक्शन। एक ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है कि जब भी इस मैग्नेट को ऐसे फ्रीली लटका दे अगर ये, तो इट विल नॉट स्टे इन ईस्ट वेस्ट बट अदर इट विल स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो बहुत सिंपल सा, अगर वो डिपेंड करता है उसका वेट भी कम होना चाहिए। बहुत लाइट मैग्नेट अगर हम ले, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे एक बहुत लाइट मैग्नेट यहाँ पे यूज़ किया, I am using a very light magnet. I am just trying it to rotate in any direction. It will stay only in north south direction. ये नॉर्थ साउथ यानी कि इस साइड में नॉर्थ है और ये पीछे साउथ है। तो हम कैसे मानेंगे कि ये नॉर्थ या साउथ है? तो लेट अस चेक बाय दिस compass box. We can see that this end is red end and this end is your black end. दिस वन इज ब्लैक एंड। तो जो सामने वाला है वो ब्लैक, उसके पीछे देखिए कंपास बॉक्स का टेल है और कंपास बॉक्स का जो हेड है दैट इज टुवर्ड्स द बैक साइड लाइक दिस। तो कंपास बॉक्स को अगर मैं हिलाऊं भी कैसे भी करूं देन इट विल ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट विल ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी हो गया और अट्रैक्शन करने वाला तो हो गया। तो एक चीज तो कॉमन हो गया कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म, दैट वी हैव डिस्कस। नाउ अर्थ कैन आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट, अर्थ कैन आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ओके, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो नेक्स्ट वन इज बिहेवियर ऑफ अर्थ एज मैग्नेट। ओके, तो नेक्स्ट वन यही है
the behavior of the earth as magnet that we just discussed. The earth can behave like a magnet. तो अर्थ को जैसे इन जनरल हम लोग देखते हैं, सपोज दिस इज द अर्थ, ये हमारे वो एक्सिस पे है, एंड दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड सो ऑन. तो ऐसा लगता है कि इसके सेंटर में कोई एक आर्टिफिशियल मैग्नेट सा बना है, दैट कैन ऑल्सो हैव इट्स नॉर्थ पोल एंड इट्स साउथ पोल. That we will discuss later, that this north and south may be slightly different from that of geographic north and south. लेकिन इसमें भी ऐसा लगता है कि ये भी एक अर्थ भी एक नेचुरल मैग्नेट सा है. तो नेचुरल मैग्नेट का मतलब क्या, व्हाट वी कैन से दैट it is simply what, it is simply due to the presence of lot of minerals in the earth's crust. Inside the earth, a lot of minerals are found which are magnetic in nature, and due to that, the earth as a whole can behave like a magnet. Okay, due to due to the presence of lot of mineral inside the earth inside the earth, it is found to behave like a natural magnet. तो ये एक नेचुरल मैग्नेट की तरह ये काम करने लगता है. हकीकत में क्या है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ मिनरल्स, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, निकल, बहुत कुछ इसमें मिलता है जो कि इन वन वे और अदर दे आर जस्ट मैग्नेटिक इन नेचर. तो मैग्नेटिक नेचर होने के कारण क्या है कि पूरे उनको एक कंबाइंड इफेक्ट अगर हम देखें तो कंबाइंड इफेक्ट से क्या मानेंगे कि अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट. तो वो इट मस्ट हैव नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट मस्ट हैव इट्स नॉर्थ साउथ एक्सिस, इसका एक्सिस भी होगा, नॉर्थ और साउथ एक्सिस होगा. तो और जैसे हम लोग देखते हैं कि अर्थ के जो इक्वेटर होता है वो मान लीजिए हम लोग ये ईस्ट वेस्ट इक्वेटर मान के चलते हैं, ये ईस्ट वेस्ट मानते हैं ये चलते हैं. तो इसका जो ऊपर नीचे जो एक्सिस होता है वो नॉर्थ और साउथ. ठीक. तो अगर हम लोग ये ये अगर मान के चलेंगे कि ज्योग्राफिक इक्वेटर एंड मैग्नेटिक इक्वेटर क्या अलग अलग होगा, अगर मैं ये कह दूं कि ज्योग्राफिक एक्सिस नॉर्थ साउथ एक्सिस एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ एक्सिस दे आर ऑलवेज डिफरेंट, they are always different, then in the same way we can also say that earth may have two types of axis. दो एक्सिस अर्थ के हो सकते हैं. देखिए अगर in the morning if you just see in front of the rising sun, then you can see the front is your east and just back is your west, and left side is your north and right side is your south. ये एक जनरल आइडिया होता है. सामने देखेंगे सूरज उगते हुए देखेंगे तो नॉर्थ दिखेगा और सामने ईस्ट दिखेगा, पीछे वेस्ट, लेफ्ट साइड में बाएं हाथ आपका जो है नॉर्थ और दाएं हाथ आपका दक्षिण. ये तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण. ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ. अगर इन द सेम वे सपोज वी आर यूजिंग द जनरल थिंग in the compass. If we use our mobile and see the compass, then we can see that this is the compass of this, and this is giving you the direction. Every time it is giving the direction, and we can say east is visible over here, and naturally in that way we can change the direction of the position. तो ये compass जो है electronic compass है, by which you can just when you do yourself in the mobile, you can see the angle is changing, and at the same time you can get some heaviness. ऐसा लगता है कोई इसे मैग्नेट कुछ चल रहा है, आपका हाथ में कुछ पड़ा हुआ है. ऐसे मैग्नेट ऐसे मोबाइल पकड़ने से वो हेवीनेस नहीं लगता है. बट व्हेन यू यूज दिस कॉम्पास, then with the change of axis you always get something, some material thing inside it. ऐसा लगता है कोई अंदर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि उछल रहा है और आपको उसका हेवीनेस को महसूस करा रहा है. तो दिस इज द जनरल कॉम्पास बॉक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, and the natural compass which we call
तो नेचुरल कंपास जिससे हम लेते हैं ये खराब भी हो सकता है अगर जाए कहीं पर भी इसका एक्सिस बदल जाए तो दिस कैन ऑल्सो डैमेज बट इलेक्ट्रॉनिक विल नेवर बी डैमेज। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं नॉर्थ साउथ है, रेड स्पॉट हमेशा नॉर्थ को दिखाते हैं, साउथ ब्लैक वाला साउथ। तो रेड को हम लोग हेड कहते हैं और पीछे वाले को टेल कहते हैं, इट इज वेरी ऑब्वियस। तो ये हम लोग ने देख लिया कि अर्थ कैन बिहेव लाइक ए मैग्नेट जब इट में हैव टू एक्सिस नॉर्थ एंड साउथ, that is magnetic north and magnetic south. Okay. Therefore, we can now discuss the elements of Earth's magnetism. We will definitely discuss elements of Earth's magnetism. Elements of Earth's magnetism. So first we will discuss angle of dip. When a magnet is freely suspended, then it bends towards the earth and it stays in north-south direction. The angle of inclination of the axis of magnet with horizontal direction is called angle of dip. Here we are just giving you the examples. I am taking this as the original magnet. It is suspended. It always makes some angle with the horizontal. That angle is your angle of dip. Now I am just making this drawing. You can see that this is a given magnet, a freely suspended magnet, and this portion is your red. That means it gives you the indication that it is pointing north. तो आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेट का जो एक्सिस है ये एक्सिस है मैग्नेट का, दिस इज द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हकीकत में कैसे होता है मैं आपको दिखा दूं। अगर बहुत भारी मैग्नेट होगा हो सकता है वो ग्रेविटेशनल पुल वो ज़्यादा ही उसमें हो, उसको नहीं, बहुत लाइट वेट मैग्नेट हम लेते हैं। तो हमने सिलेक्ट किया कि एक बहुत लाइट वेट मैग्नेट है, बहुत लाइट वेट। तो पहले हम इसको जरा इसका वो देख लेंगे, पॉइंट्स देख लेंगे, इससे हम देखेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है तो ये साउथ पॉइंट होगा। Now it is your north point. This one is north, ये north pole हो गया, north pole, okay, and this one is your south. तो इधर वाला south हो गया, ठीक, और इधर वाला जो है आपका north, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो अब मैं इसको लटका कर देखता हूँ, फ्रीली सस्पेंड करके देखता हूँ कि हकीकत में क्या होता है। देखिए जितने बार भी मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सीधा करे, किसी भी तरह हॉरिजॉन्टल हो जाए, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाता है। ये इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड द अर्थ। आप देख सकते हैं इसका साइड व्यू देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा साइड करने से नहीं होगा क्योंकि इट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ अर्थ। तो मैं जहाँ पर हूँ ये दक्षिण है, तो आपके जो मेरे सामने जो जहाँ पर कैमरा है दैट इज योर नॉर्थ डायरेक्शन। तो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। हाउ वी कंसिडर दिस इज नॉर्थ। तो इसको मैं इस बार पीछे रखकर देखता हूँ, देखो
So this is being closer to the tail of the magnet, that means it is north. और ये बैक साइड जो है इट इज क्लोजर टू द हेड ऑफ द मैग्नेट, तो ये होता है साउथ। दिस इज योर साउथ, पीछे वाला पोर्शन साउथ है और इसका जो सामने वाला पोर्शन ये नॉर्थ। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वाले के तरफ भी ये झुक जाता है सामने की ओर। मैं देखता हूँ कि हॉरिजॉन्टल से ये कितना बन सकता है। तो इफ वी कंसीडर दिस एज द हॉरिजॉन्टल लाइन, then we always see that it makes an angle. It makes an angle. इसका एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा और दैट एंगल इज योर एंगल ऑफ टिप। यहाँ पे इतने छोटे में पॉसिबल नहीं उसको दिखाना। इसको अगर लटकाए और प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाए तो इट विल डेफिनेटली गिव यू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो ये एक मैग्नेट है। अच्छा, अगर ये तो बहुत भारी हल्का मैग्नेट था, उससे थोड़ा हेवी मैग्नेट अगर हम ले लें, जैसे ये है, ये काफ़ी बार मैग्नेट, ये थोड़ा हेवी मैग्नेट है और इसको भी हम देखते हैं कि अगर मैं जितना भी घुमाऊं तो इट विल ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्योंकि इसमें नॉर्थ साउथ क्या, इस सामने वाला पोर्शन नॉर्थ होगा, पीछे वाला साउथ। यहाँ पर लेफ्ट राइट कुछ नहीं है। तो मैं जितना भी कोशिश करूँ इसको ऐसे करके लटका दूँ और लेफ्ट राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं ऐसे रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तब भी ये जो है आपका, ये जो फ्लैट पोर्शन सामने की ओर दिखा रहे दैट इज नॉर्थ। ये नॉर्थ है या नहीं, जरा इसको भी चेक करते हैं हम लोग इससे कि देखिए, तो ये नॉर्थ ही है। अच्छा, इसका पीछे वाला देखते हैं हम लोग, बैक साइड इज योर साउथ, बैक साइड इज साउथ। तो इसके मतलब नॉर्थ जो है सामने है, सामने वाला पोर्शन नॉर्थ है और सामने ही मेरा, मैं पहले ही कहा कि आई एम स्टैंडिंग इन द साउदर्न एरिया, देयरफॉर इन फ्रंट ऑफ मी इट इज नॉर्थ एंड इन बैक ऑफ इट इट इज साउथ। तो ये भी एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये भी नॉर्थ साउथ पर रुकता है, इसमें एंगल और डिप का प्रॉपर प्रोसेस नहीं समझ में आता है, क्योंकि इसमें भी झुकेगा तो उसको बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व, it is still making an angle. It is still making an angle. I cannot move and just show you the sideways. Why? Because if I show that, it will also bend. It have to keep its north pole towards the north only. तो ये नॉर्थ साइड में ये रहेगा। तो आपके साइड से अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज स्टिल मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ टिप और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का मजा। ठीक है, तो इन द सेम वे वी कैन सी देयर आर अदर टाइप्स ऑफ मैग्नेट ऑल्सो, लाइक ये जैसे है हॉर्सशू मैग्नेट। तो इस हॉर्सशू मैग्नेट में खास बात क्या है कि इसमें एक साइड में नॉर्थ होगा, एक साइड में इस साइड में देखिए साउथ हो रहा है इस साइड में, और एक साइड में आपका इसमें नॉर्थ होगा, एक साइड में नॉर्थ होगा। तो एक साइड में नॉर्थ और एक साइड में साउथ, एक साइड में नॉर्थ और एक साइड में साउथ। तो आप देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये पोल पीसेस कह सकते हैं, जो आप लोगों को जो इसके पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमने देखा था, जिसमें कि गैल्वेनोमीटर वगैरह सब बताया था कि पोल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच हम लोग एक कॉइल घुमाते हैं, दैट वी हैव डिस्कस इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। But here the similar thing is here also. This is the actual situation. This is the horseshoe magnet, and you can see, you have already seen that the North Pole and the South Pole, they are different, but they are not separable. They are inseparable, because magnetic dipoles are always inseparable. Even if it is divided into millions of pieces, then each, even the particles form, they will also have north and south in the dipole form. तो ये पहला आर्टिकल जो इसमें पहले हमने बताया कि एंगल ऑफ डिप बताया वो थीटा। The next one is your meridian. ये भी एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में ही है। तो नेक्स्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग, इट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। Again we are taking on the same suspended magnet. Okay, I am taking the same suspended magnet, and this is the angle, this is the axis of the magnet. तो अगर इससे जाने वाला कोई वर्टिकल प्लेन ले ले,
if we take any vertical plane which can include the axis of freely suspended magnet, then that vertical plane is called as magnetic meridian. So what we say that uh, it is a vertical plane which contain which contains the axis of which contains the axis of um, freely suspended magnet. It is a vertical plane which contains the axis of freely suspended magnet. Okay, like this. That is called as magnetic meridian. ठीक है, तो अब ऐसे ही अर्थ कैन बिहेव लाइक ए मैग्नेट. तो इसमें क्या हो जाएगा कि if we consider this as the geographic axis, this if we consider this as the geographic axis, this is geographic north and geographic south हमने एस एस जी लिख दिया, नॉर्थ के लिए एन जी लिख दिया, जी फॉर ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल और जियोग्राफिक एंड. तो इससे जो प्लेन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो प्लेन दिख रहा है, दिस प्लेन इज एक्चुअली आवर मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ सॉरी जोग्राफिक मेरिडियन. इसको हम लोग जोग्राफिक मेरिडियन कहेंगे. और जो एक्सिस इसका होता है वो थोड़ा अलग होता है. This is a magnetic axis, magnetic north, and this is magnetic south. इससे जो जाने वाला जो भी आपका प्लेन होगा, so this plane is our what we call as our this one magnetic मेरिडियन. ये मैग्नेटिक मेरिडियन. तो इस तरह आपने जब मैग्नेटिक मेरिडियन देखा तो आप इसी तरह जोग्राफिक मेरिडियन भी देख सकते हैं. जोग्राफिक मेरिडियन क्या है? इट इज एनी प्लेन which contains the geographic axis north south of the earth. The magnetic meridian could be of a given magnet as well as that of earth. तो जनरली हम लोग कोई भी मैग्नेटिक इक्विपमेंट जब सेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी प्लेस द कंपास बॉक्स इन द सेंटर ऑफ द पेपर, देन वी रोटेट द पेपर until the axis of until the edge of the paper comes in line with or parallel to द मैग्नेटिक एरो. जो मैग्नेटिक एरो जो कंपास बॉक्स में हम लोग देखते हैं, मैग्नेटिक एरो जो दिखता है, तो जब हम पेपर को घुमाते घुमाते इतना सेट कर लेंगे कि ये वाला एरो जो है मैग्नेट पेपर के एज के पैरेलल हो जाए, देन ओनली वी कैन ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड अदर एक्सपेरिमेंट वी कैन डू. तो उसको हम ये कहते हैं पेपर इज सेट इन मैग्नेटिक मेरिडियन. ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन. तो मैग्नेटिक मेरिडियन किसी मैग्नेट के लिए होता है. एंड द सेम वे magnetic meridian, it is the vertical plane which contains the axis of freely suspended magnet, including the Earth's magnetic axis. Including the Earth as magnet, that could also be the Earth's meridian. Okay. तो ये तो geographic magnetic meridian हो गया. In the same way, we can say geographic meridian. In the same way, we can say it is geographic meridian. Geographic meridian. So this may be, as we have already said from this only, that is, it is any plane. It is any plane which contains the geographic axis of the earth. यहाँ पर केवल अर्थ के लिए जोग्राफिक मेरिडियन होगा. यहाँ पर इट विल नॉट बी फॉर एनी अदर थिंग. व्हेन वी कॉल जोग्राफिक मेरिडियन इट इज डेफिनेटली फॉर अर्थ. Geographic meridian is it is any plane which contains the geographic axis of the earth. तो यहाँ पर this is your geographic meridian, this is your
geographic meridian, and this one is magnetic meridian. Magnetic meridian. Now you can do yourself. आप छत में जाकर एक कंपास को रख के और नॉर्थ साउथ पहले आप लाइन खींच के देख सकते हैं, एंड देन यू पुट द कंपास ऑन दैट लाइन कि उस नॉर्थ साउथ से इस नॉर्थ साउथ में क्या अंतर है. इट इज अराउंड 11.4 डिग्री. दोनों में 11.4 डिग्री का डिफरेंस होता है. तो नॉर्थ साउथ जो आपका नॉर्थ साउथ मैग्नेट ये होता है आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ होता है. ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ तो नेचुरली दिस इज जो होगा ये ईस्ट वेस्ट हो जाएगा. ईस्ट वेस्ट एंड दिस विल बी इक्वेटर. मैं इक्वेटर को तो अलग कलर से दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इट प्रॉपरली. बाय रेड आई एम शोइंग द इक्वेटर. देखा इक्वेटर इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए आपके मेरिडियन के. ये तो ये एन जी और एस जी के परपेंडिकुलर है. दैट मीन दिस इज योर ज्योग्राफिक इक्वेटर. ज्योग्राफिक इक्वेटर. ओके एंड सिमिलरली दिस इज द परपेंडिकुलर टू दिस. इसके परपेंडिकुलर एक अगर मैं छोटा सा एक प्लेन खींच दें तो दिस विल बी आवर मैग्नेटिक इक्वेटर. मैग्नेटिक इक्वेटर. तो आपने देख लिया कि ज्योग्राफिक इक्वेटर एंड मैग्नेटिक इक्वेटर भी अलग अलग हो सकते हैं. जिस तरह का इनके एक्सिस अलग अलग है, मेरिडियन अलग अलग है. तो मेरिडियन जो होगा उसके परपेंडिकुलर ही होता है इक्वेटर. तो इक्वेटर भी एक प्लेन ही होता है. तो दिस इज जनरली वी हैव व्हाट इज द व्हाट वी कॉल एज एंगल ऑफ डिप. और एंगल ऑफ डिप को आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया. और अलग अलग टाइप के मैग्नेट कैसे नॉर्थ साउथ दिखाते हैं वो भी देख लिया कि इट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ. स्पीडली सस्पेंडेड मैग्नेट कैसे होता है. And the same way you have seen what is geographic meridian and this magnetic meridian. Now we will discuss what is angle of declination. Angle of declination. This is the angle between two meridian. एक प्लेन ये दिखता है, दूसरा प्लेन ये दिखता है. ये जो एंगल है अल्फा जिसे हमने 11 पॉइंट समथिंग दिखा भी रहा था. तो दिस इज आवर ज्योग्राफिक मेरिडियन. ज्योग्राफिक मेरिडियन and this is our magnetic meridian. तो इनके बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिक मेरिडियंस मेरिडियंस is called angle of declination. Angle of declination. तो इसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं और एंगल ऑफ डिप को थीटा से दिखाते हैं. ठीक है. तो अब ये तो एक जनरल हो गया. तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसके मतलब वो हमेशा थोड़ा नीचे की ओर झुककर ही हम उसको मान के चलेंगे ड्यू टू एंगल ऑफ डिप. तो इन दैट वे जो हम लोग जिसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मानते हैं तो वो भी कुछ चेंज आ जाएगा. तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट होता है. तो कंपोनेंट of Earth's magnetic field. So what we write, if V is the Earth's magnetic field,
and angular dip from horizontal is theta, then this will be your b cos theta, and this is your b sin theta. ये वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर होगा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा. तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिटन बाय h b cos theta and vertical component written by v, we write as v sin theta. ये दो अलग अलग लिख दिया. तो अब इसके मतलब इनको डिवाइड कर दे तो वी कैन गेट v अपॉन h इक्वल टू sin theta अपॉन cos theta tan theta. So v equal to h tan theta. It is the relation between angular dip, vertical component and horizontal component of Earth's magnetic field. Sometimes even we call it as the tangent law. तो मेरा जितने भी इस चैप्टर से कनेक्टेड अर्थ एलिमेंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड जो विच आर देयर इन द सिलेबस ऑफ दिस ईयर CBSE, दैट वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस्ड. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग दैट इज क्लासिफिकेशन का थोड़ा बहुत बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ सोलेनोइड कैन बिहेव लाइक अ मैग्नेट, a bar magnet. With that, we have completed today's lecture. Hope you have enjoyed the thing. You have seen actual case how actually magnet behaves. With that, we have completed today's lecture. Thank you very much. Please see the video repeatedly and subscribe it if you have not subscribed. If you are watching it first time, then please subscribe it and get it subscribed by your friends and share it. Thank you.